اللهم صل على محمد المصطفى وآل محمد المصطفى إلى قيامة. دودھ ماں دیکھو ویرا کارموں اینے دودھے تے پڑشو جنجال ہو جی. داغ دیکھو ویرا علی تنو سچے شہادتنو. مولانا حضرت امام کے صلوات پڑھو دیندارو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کی اعلیٰ بخششوں میں سے جو سب سے اونچی عظیم ترین بخشش ہے، حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرمایا، مولا مرتضی علی فرمایا، رسول اکرم فرمایا کہ وہ چیز ایمان ہے. ایمان سے بڑھ کر انسان کو خدا نے اور کوئی نعمت نہیں بخشی، لیکن اس کے لیے بھی امام سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے سلامتی کا ایک ہی راستہ ہے کہ تم ہر روز ایمان سلامت رہے، اس کی دعا مانگتے رہو ہر روز. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا آپ اس کو سپرد کر دیتے ہیں. ایمان کی نشانیوں میں یہی نشانی ہے. خدا تعالیٰ کیوں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم ایمان لائے ہو، لیکن وہ کیا کہتا ہے ایمان والے تو ہیں. یا ایھا الذین آمنو یعنی اے ایمان لانے والو اور ایمان لا چکے ہو وہ لوگ. آمنت باللہ، بھائی اوپر خدا کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اب نیچے کہتا ہے اللہ کے اوپر ایمان لاؤ. یہ دہرانے کی ضرورت کیا پڑی خدا کو؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں کہ جو ایمان لا چکے ہیں. آمنت باللہ، تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ. ایمان تو لا چکے ہیں، اب وہ کون سا ایمان ہے کہ جو دوبارہ خدا انسسٹ کر رہا ہے؟ کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام کو کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ نہیں سمجھ سکتا. آپ نے دیکھا کہ کلام اللہ کس کے گھر میں اترا؟ کلام اللہ کہاں اترا؟ علی نبی کے گھر میں اترا، اس کے باہر نہیں، کسی اور کے گھر میں نہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن قرآن پاک تو علی نبی کے گھر میں اترا، دوسروں کے گھروں میں نہیں اترا جو قرآن کا دعویٰ کرتے ہیں. جس کے گھر میں قرآن اترا وہ قرآن کو زیادہ جانتا ہے کہ جس نے محض سنا وہ جانتا ہے. جس کے گھر میں اترا وہ بہتر جانتا ہے. میرے ابا اور میرے دادا کی باتوں کو میں زیادہ جانوں کہ کوئی اور جانے. قرآن شریف علی نبی کے گھرانے میں اترا، اور علی نبی کا گھرانہ آج بھی موجود ہے. وہ دوسروں کا گھرانہ تو ختم ہو گیا، نام بھی نہیں رہا، نشان بھی نہیں رہا. علی نبی کا گھرانہ تو موجود ہے، ہر قیامت تک موجود ہی رہے گا. اس گھرانے کو مٹ جانے کا کوئی نشان نہیں، کیونکہ یہ ازلی ہیں، ابدی ہیں. نور جو ہے وہ ازلی ہے، ابدی ہے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے. میں نے کل پرسوں ہی اپنی کسی آواز میں کہا تھا کہ جب یہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی، آخری انسان اس دنیا میں رہے گا وہ امام ہوگا اپنے وقت کا. پیر نے کی نان میں کہا ہے جیوی تارا دل مائیں تیوی صاحب نے واچا. جیسی تیرے دل میں ہے وہ کیا چیز ہے؟ نیت، خیال. تیرے دل میں جو ہے وہ مولا جانتا ہے، اس کو سب پتا ہے. ہماری حالت کو دیکھ کے وہ فرمان کرتا ہے. ایک بڑا اعلیٰ درجے کا مومن ہوگا، اس کو مولا بلائے گا بھی نہیں. وہ کبھی سامنے بھی بیٹھے ہوگا تو کسی وقت نظر ملا لے گا،
लेकिन ढोंगा तो लफ्ज ढोंगी है, लेकिन पुरानी जबान के अंदर इसको ढोंगा कहते हैं। ढोंगा तो एने एने हारे वसे, इसके आजू बाजू में घूमने फिरने वाले। ते तो लूटे धनी नु ध्यान रे, ढोंगा तो एने एने हारे वसे। जो ऐसे होते हैं उनको नजदीक बुलाता है। इसको मालूम है जो मेरा है उसकी चमड़ी खींच डालो फिर भी वो मेरा ही रहने वाला है, उसमें फर्क नहीं होने वाला। और जो मेरा नहीं है उसको मैं प्यार करूंगा, पंपाड़ूंगा, उसको खिलाऊंगा, उसको मजे कराऊंगा, फिर भी उनके दिल शेकी रहेंगे। तो ईमान जो है दीनदारों, ईमान का मतलब है अपने आप को सुपुर्द कर देना। ऐ ईमान वालों, तुम अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ। ये दो चीजें क्यों? ये इसलिए कि हमने पहले यकीन कर लिया कि अल्लाह एक है, अल्लाह मौजूद है। अब खुदा का ये कहना कि तुम अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ, उसका मतलब ये है कि सबमिट हो जाओ, सरेंडर हो जाओ, अधीन हो जाओ, सर झुका दो फरिश्तों की तरह। अगर खुदा ने कहा कि इस मिट्टी के बुत को, आदम को सजदा करो, तो फरिश्तों ने चूनो चरा नहीं की, फौरन वो सबमिट हो गए और आदम को उन्होंने सजदा कर दिया। ईमान के अंदर हमारी अक्ल अगर शामिल हो गई तो वो ईमान पोल्यूट हो गया, यानी उसके अंदर ऐसा हो गया कि दूध में कोई गैर चीज पड़ गई। गैर चीज पड़ जाने से दूध की सफेदी में वो चीज नजर आती है। हालांकि मक्खन दूध में से ही निकला है, लेकिन आप मक्खन का एक छोटा सा टुकड़ा दूध में डाल दोगे तो फिर वो भी दूध से मुख्तलिफ नजर आएगा। दूध मा देखो वीरा कारमो, एने दूधे ते पड़शो जंजाल हो जी। दाग देखो वीरा अली तनो सच्चे शहातनो। दूध में दूध माँ, दूध के अंदर जो कोई भी ऐसी फॉरेन चीज है उसको तुम देखो। दूध माँ देखो वीरा कारमू, कारमू कहते हैं जो खराब करने वाली चीज है। अगर इस दूध के अंदर खराब करने वाली कोई चीज पड़ी हुई है तो फरमाते हैं कि ये दूध पियोगे तो तुम बिगड़ जाओगे। इन्हें दूध ते पड़सो जंजाल। दूध क्या है? ईमान। अपने ईमान के अंदर कोई भी खराबी देखो तो फौरन निकाल डालो। अगर नहीं निकालोगे तो ये खराबी तुम्हें हैरान करेगी। दूध माँ, दूध के अंदर देखो वीरा कारमू, कारमू यानी कोई खराबी। कोलसा पड़ गया, कोई कागज का टुकड़ा पड़ गया, कुछ और चीज गिर गई, उससे दूध बिगड़ जाता है। ईमान के अंदर ईमान दूध की तरह सफेद है, पाक है, क्योंकि ईमान में से ही नूर बनता है। ईमान एक बीज है, जब वो फूटता है उसमें से नूर निकलता है। कामिल ईमान जब हो जाता है तो उसमें से नूर फूटता है। इसलिए फिर फरमाते हैं, फिर कहते हैं दाग देखो अली तनो। दाग का मतलब क्या? दाग तो निशान को कहते हैं, लेकिन जो फ्लैग है ये भी तो निशान है। अली का जो निशान है, अली का मेडल है, अली का फ्लैग है, अली का नाम है। जहां अली है, जिसमें अली है, उसको ढूंढो।
दाग देखो वीरा अली तनो सच्चे शाह तनो। रसूल अकरम फरमाया ना, जिधर अली है हक उधर है। नबी ने ऐसा नहीं कहा कि जिधर हक है उधर अली है, तफावत समझो। ऐसा नहीं कहा कि जिधर हक है अली उस तरफ है, ऐसा नहीं कहा। ये कहा है कि जिधर अली है हक उधर है, यानी हक को अली के पीछे रखा है। हक जो है वो ईमान है, हक है वो सच्चाई है, और खुद खुदावंद आलमीन का नाम हक है। अली जिधर है हक उधर है, सच उधर है, सच्चाई उधर है। और अली जो है उसके लिए नबी करीम फरमाते हैं कि अली वो ऐसा है कि जो उससे प्यार करते हैं वही सच्चे मोमन हैं। वही फरमाते हैं कि हुब्बुन अली ईमान, अली का जो प्यार है, अली से प्यार करने का नाम ही ईमान है। अरे कैसी कैसी चीजें हदीसों में पढ़ी हैं, और ये किताबें इधर बंदर रोड की किताब खानों में बिकती हैं। मगर मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि ये सब चीज बिकती है, जाहिर बिकती है, फिर क्यों नहीं पढ़ते? नबी फरमाते हैं कि हुब्बुन अली ईमान, अली की मोहब्बत जो है वो ईमान है। बुग़्ज़हू कुफ्र निफाक, जो अली से बुग़्ज़ रखता है, दुश्मनी करता है, कीना रखता है, शक रखता है, डाउट करता है, फरमाया ये हालत कुफ्र निफाक की है। तौहीद वननेस ऑफ गॉड है, तौहीद यूनिटी है, तौहीद का ऑपोजिट निफाक है, तौहीद का दुश्मन निफाक है। इतनी तारीफें की गई है रसूल अकरम के मुख मुबारक से। तो मेरी अर्ज ये थी कि ईमान वो है कि हम उसके ऊपर अपना सब कुछ निछावर कर देवें। वो कहे बैठ जाओ, फौरन बैठ जाओ, उसमें एक आंख की पलक भी देरी नहीं करना। वो कहे उठ बैठो तो उठ बैठो। इसका नाम है ईमान, कि जिसमें कोई भी उज़र नहीं, दलील नहीं, सवाल नहीं, हुज्जत नहीं। उसने हुक्म किया, इसने आमन्ना सद्दक़ना किया, बस। ये है वो चीज के जो अल्लाह कहता है, ए ईमान वालो या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमन्तु बिल्लाह। ये आमन्तु बिल्लाह ये है कि उसके हुक्म के सामने कोई दलील नहीं होवे, हुज्जत नहीं हो। ऐसा ईमान ईमान है। ये वो दूध है जिसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं गिरी हुई कि जो हमको ईमान को खराब कर देवे। और जैसे पीर कहते हैं, दूध माँ देखो वीरा कारमो इन्हें दूधेते पड़सो जंजाल। ईमान अल्हम्दुलिल्लाह है। ये ईमान ऐसा है जैसे कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, लेकिन आमन्तु बिल्लाह वाला ईमान चाहिए। इमाम के हुक्म के ऊपर जब तक हम अमल नहीं करेंगे और बिल्कुल प्यार से अमल करें, कोई भी हुज्जत के बगैर अमल करें, शक किए बगैर अमल करें, वो ईमान फलता है, वो ईमान फलता है। किसी भी इस्माइली को पूछो, मौलाना हजरत इमाम को मानते हो? हाँ मौला हमारा मौला है। जमात खाने जाते हो? कभी कभी जाता हूँ, शाम को मेरी ड्यूटी होती, मेरी दुकान होती। हजरत इमाम को मानते हो? हाँ हाँ मानता हूँ। 10 मन देते हो? पूरा ही नहीं होता तो क्या? तो वो मौला का मानना कहा, किस प्रकार का, किस किस्म का? हाँ मौला मेरा मौला है, सच बात है। लेकिन वो मुंह से, मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर थे, हम लोग गुप्ती थे पंजाब में, इधर बहुत से पंजाबी भी होंगे। मेरे परदादा, सगे परदादा मेरे थे, वो मुखी फकीर चंद थे, लेकिन उनका एक बड़ा भाई था वजीर अमीर चंद। ये इमाम ज़मान के पंजाब के अंदर वारिस थे और मौला के स्टेट मैनेजर भी थे।
اور امام کی بڑی خدمت کی. جب امام نے ہمیں حکم فرمایا پنجابیوں کو 1917 کے اندر 1916 کے اندر کہ ابھی تم کھلے مسلمان بن جاؤ، ظاہر ہو جاؤ، پھر شمس کے زمانے سے تم میرے مرید رہے ہو، میں تمہارے اوپر بڑا پیار رکھتا ہوں، لیکن اب زمانہ آیا کہ اب تم کھلے مسلمان ہو جاؤ. 8 آدمیوں کو، لیڈروں کو یہ حکم کیا تھا، انہوں نے سر نیچے ڈال دیے. آمین خداوند. ایک نے کہا یا مولا، مولا نے کہا تھا کہ تم اپنے نام بدل ڈالو، تو ایک نے کہا مولا تو ہی ہمارے نام بدل ڈال، 8 جنے ہیں. تو خوشی سے سب کے نام بدل ڈالے. جب یہ لوگ 8 واپس آئے اپنے اپنے شہروں میں، جا کے جماعتوں کو کہا، تو وارث امیر چند میرے پردادا جو تھے وہ ڈھچو پچو ہو گیا. 1911 میں، یعنی یہ فرمان ہونے سے پہلے 1911 میں مولا امام سلطان محمد شاہ لاہور گئے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنانے کے لیے سارا ہندوستان مولا گھومے چندہ جمع کرنے کے لیے. اس زمانے کی ڈیٹیل میرے پاس میرے دادا کی لکھی ہوئی موجود ہے کہ جو وہاں خود حاضر تھے. مولا جب اسٹیشن سے باہر نکلے، مسلمانوں کا ہجوم دیکھا. 2 گھوڑے کی گاڑی فٹن تھی، ایسا بند تھی، اوپر چھت نہیں تھی. اس کے اندر اکیلے امام سلطان محمد شاہ بیٹھے تھے. اللہ اکبر کے نعروں سے زمین کانپتی تھی. اور گاڑی جب ہی چلی، لوگوں نے پھول پھینکنے شروع کیے. ہارڈلی کچھ 30 کے 40 قدم تک ہی گھوڑے گئے ہوں گے. لوگوں نے گاڑی کو روک لیا، گھوڑے نکال دیے اور لوگوں نے امام کی گاڑی کھینچی. اس گاڑی کو کھینچنے والوں میں بعد میں بڑے بڑے عظیم مسلمانوں کے لیڈر بنے. سر ڈاکٹر محمد اقبال گاڑی کھینچنے والوں میں تھے. سر محمد شفیع گاڑی کھینچنے والوں میں سے تھے. سر سکندر حیات خان اس وقت بچہ تھا، یعنی 12-14 سال کا، مگر وہ کہتا ہے کہ میں بھی گاڑی کھینچتا تھا. کوئی آگے سے کھینچتے تھے، کوئی پیچھے سے دھکا لگاتے تھے. سر فضل حسین، سر فیروز خانون، مشیر احمد کدوائی، اس قسم کے، سر عبد القادر، ایسے عظیم لیڈر بعد میں ہوئے جو اس زمانے میں گاڑیاں کھینچی امام کی. صبح 10 بجے سے لے کے شام کے 5 بجے تک 5 اور 2 7 گھنٹے گھوڑوں کو نکال دیا. مسلمانوں نے امام سلطان محمد شاہ کی گاڑی کھینچی 7 گھنٹے، اور اتنے پھول برسے کہ امام سلطان محمد شاہ کی گردن مبارک باہر تھی اور 2 ہاتھ باہر تھے. ساری گاڑی پھولوں کی پتیوں سے بھر گئی. یہ جوش و خروش دیکھ کے دوسرے دن جب امام جانے لگے، کراچی کی طرف آتے تھے. لاہور کے پلیٹ فارم پہ رات کو 11 بجے بتیاں جل رہی ہیں. یہ میرے پردادا وزیر امیر چند ہاتھ باندھے ساتھ چل رہے ہیں. کہتے ہیں خداوند یہ مسلمان آپ پہ بڑے فدا ہیں. آپ سچ مچ، ہم اس وقت ہندو تھے نا، یعنی گپتی تھے، ظاہر نہیں ہوئے تھے. آپ سچ مچ نکلنکی اوتار ہو، آپ سچ مچ رام کرشن کا اوتار ہو. مولا کھڑے ہو کے اس کو دیکھتے ہیں. امیر چند ادھر سے نہیں بولو، ادھر سے بولو. یہ مطلب کہ تو دل سے نہیں بول رہا، صرف مجھے مکھن مارنے کے لیے بول رہا ہے. امیر چند ادھر سے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ کے مولا کہتے ہیں منہ سے مت بولو، سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا دل سے بولو. اور جب مسلمان ہونے کا حکم ہوا تو وہ مسلمان نہ ہوا، وہ کافر ہو گیا. میری فیملی میں یہ بات بنی ہوئی ہے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت وہ ایمان تو تھا ہی اس کا کہ آپ سچے نکلنکی اوتار ہو، مگر وہ ایمان نہیں تھا کہ جو اللہ کہتا ہے آمنتو باللہ. ہمارے ہاں ایسے بہت ہیں، بہت. اسماعیلی مذہب ہم کو دنیا بھی سکھاتا ہے، دین بھی سکھاتا ہے. بہت سی چیزیں سمجھنے جیسی ہیں. لوگوں کو دیکھنے جاؤ گے تو ایمان خراب ہو جائے گا. لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کے مرید نہیں ہیں،
हम अपने मजहब के मुरीद हैं, मेरा मजहब क्या कहता है मुझे उस पे चलना है। लोग शराब पीते हैं, पीने दो, सिगरेट पीते हैं, पीने दो, बदियां करते हैं, करने दो, चैन चला करते हैं, करने दो। मेरा मजहब क्या कहता है? मैंने अपने मजहब के साथ शादी की है, मैंने अपने मौला के साथ अपनी बैयत की है, मेरा सब कुछ मेरा मजहब है, मेरा ईमान है। हमारा मजहब हमारा है, जान जाए तो भी हमारा है। एक बहुत ही बदसूरत माँ का बच्चा होवे और उसको एक खूबसूरत औरत को पकड़ के ले आओ कि देख तेरी माँ है, बदसूरत है, ये खूबसूरत औरत है ना, ये तेरी माँ है, तो बच्चा कबूल करेगा? उसको माँ की बदसूरती खूबसूरती के साथ कोई ताल्लुक नहीं। वो तो माँ से मोहब्बत करता है क्योंकि माँ के जिगर का टुकड़ा है। उसकी माँ लंगड़ी है, लूली है, कानी है, बदसूरत है, गरीब है, माँ है। वो खूबसूरत पैसे वाली माँ को कबूल नहीं करेगा। हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दीन, ये मजहब निहायत ही खूबसूरत आला दर्जे का है। नबियों का मजहब ये है, फरिश्तों का मजहब है, और हम दूसरों को गैरों की ऊपर नजर करते हैं। इमाम के फरमानों में जो बदनजरी का फरमान है, दीनदारों, एक ये भी बदनजरी है कि जो आदमी अपने दीन को छोड़ के दूसरों के दीन के ऊपर अपनी नजर दौड़ाता है, यानी अंदर की नजर, ये भी बदनजरी है। अपने दीन को छोड़ के दूसरों के दीन को अच्छा समझना बदनजरी है, और ये एक अजीम गुनाह है। और ये हमारे ईमान के अंदर कोई खराबी पैदा हो गई, जिस तरह दूध में कोई खराबी गिर जावे तो दूध फट जाता है, खराब होता है। इन्हें दूधे से पड़सो जंजाल। हमारा मजहब हमारा है। मेरा कहने का मकसद ये था कि हमारे मजहब ने हमें दुनिया दीन की हर चीज समझाई है, और अगर कोई चीज हमारी समझ में नहीं आती तो जमात के अंदर हजरत इमाम ने ऐसे आलिम बना रखे हैं, पैदा कर रखे हैं, मुकर्रर कर रखे हैं कि जो हमें रास्ता दिखाते हैं। फिर भी अगर हमें तसल्ली नहीं होती, हजरत इमाम कहते हैं मुझसे पूछो, मुझे खत लिखो, और हजरत इमाम को पर्सनल खत्म लिख सकते हैं काउंसिल की मारिफत से, चाहे वो दीनी सवाल हुए, चाहे कोई और भी हमें मुश्किल आ जाए। तो मोमिनो, जो ईमान है, ईमान उसके साथ हिम्मत होती है। ईमान और हिम्मत साथ चलते हैं। अगर ईमान कमजोर हो जाता है तो हिम्मत घट जाती है। हिम्मत बड़ी ईमान निशानी। हमेशा हिम्मत से काम लो, अपनी हिम्मत को बढ़ाओ। और हिम्मत के बढ़ाने का नुस्खा मैं आपको बता रहा था, हर रोज जमात खाने आओ। जमात खाने आने से दुनिया की सारे दिन की जो कुछ भी हमारे ऊपर दबाव, प्रेशर और मुश्किलें, तकलीफें पड़ी हैं, इधर आके रिलीफ मिलता है। एक आदमी गर्मी में से घबराया हुआ किसी ठंडक की जगह में आ जाए तो उसको एक किस्म का सुकून मिलता है। जमात खाना, मौलाना हजरत इमाम का घर, ये नूरानी जगह, यहाँ आने से हमें सुकून मिलता है, हिम्मत बढ़ती है, हिम्मत पैदा होती है, और यही हिम्मत फिर हमको अपने रास्ते पे चलाती है। दीनदारों, हम इंसान हैं, कमजोर हैं, नातवा हैं, मगर जब इंसान कमजोर नातवा हो जाता है तो कोई टॉनिक मिलनी चाहिए ताकि उसके अंदर एनर्जी आ जावे। और अगर उसको टॉनिक नहीं मिलेगी तो ये नातवानी बढ़ती 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 मौत तक खींच जाएगी। अब ये टॉनिक क्या है? हर रोज सुबह शाम जमात खाने की हाजिरी वो टॉनिक है। हर रोज जमात खाने आने वाले बहुत थोड़े हैं, और फिर सुबह आने वाले तो और भी थोड़े हैं। मैं दाखिल हुआ, मैं गपबाज नहीं हूं मेरे मौला की रहमत से। मुझे मौला ने बहुत सी बख्शिशें दी हैं, मैं उसका शुक्रगुजार हूं। मैं जिसके लायक नहीं हूं ऐसी भी उन्हें मुझे बख्शिशें दी हैं। मैं एंटर हुआ इस जमात खाने में, हैज़ंदा करके मैंने इधर देखा उधर देखा, मुझे महसूस हुआ, मुझे बू आती थी कि इस जमात खाने के अंदर जमात वीक हो गई है।
जमात वीक हो गई है। चेहरों के ऊपर वो अजमत और जलालत जो होनी चाहिए किसी मोमन के, इधर कम है, सुस्ती आ गई है, हिम्मत घट गई है। और हिम्मत इसलिए घट गई है कि जमात खाने नहीं आते। इधर आके जो टॉनिक मिलनी चाहिए, अरे घड़ी घड़ी कितनी दफा आप गिनो तो सही, अंदर दाखिल होते हो कहते हो हाय जिंदा, और खड़ा हुआ कोई जमात भाई साथिया जवाब देता है जो हमारे मजहब का एक ये तरीका है, वो कहता है कायम पाया। ये क्या है? अपने ईमान का इजहार है कि मेरा मौला जिंदा है, यानी गायब नहीं, किसी और जगह नहीं। वो कहता है यहां है, मौजूद है, कायम पाया, इधर मौजूद है। तो ये हमको एक किस्म की वार्निंग है कि जमात खाने के अंदर आते हो, ये हजरत इमाम का घर है, वो यहाँ मौजूद है। निहायत ही अदब से, इज्जत से, प्यार से इस जमात खाने में कदम कदम पे चलो। उस दरवाजे से मुखी कमरिया के पाठ तक पहुंचने तक सलवात पढ़ते रहो। जमात खाना मौलाना हजरत इमाम का घर, ये नूरानी जगह, यहाँ आने से हमें सुकून मिलता है, हिम्मत बढ़ती है। ये चीजें, ये बख्शिशें जमात खाने में हैं। और जमात खाने में खास तौर पे रूहानियत के लिए सुबह की हाजिरी बहुत जरूरत है। जागत क्यों नहीं, जागत क्यों नहीं भला तू, जागत क्यों नहीं भोर भये पछताए रहो तू, जागत क्यों नहीं भला तू, जागत क्यों नहीं। उठो, भोर हो गई, सूरज निकल आया, दिन निकल आया, और अगर तुम नहीं उठोगे तो तुमको पछतावा होगा। समझदार को, मोमन को पछतावा महसूस होता है, लेकिन जब इंसान हर रोज ऐसा ही करे तो फिर अंतकरण बातुन बहर मार जाता है, बहरा हो जाता है। फिर पुकार करो वो सुनता नहीं, सुनता नहीं। रोज सुबह आओ, दिनदारो, सुबह की हाजिरी आपको दिन दुनिया में सुख शांति आबादी देगी। मौला आपके ऊपर राजी होवे, मौला आपके दिलों को अमन और सुकून देवे, मौला आपको दसों सुकरीत में पूरा रखे, इबादत बंदगी का शौक देवे, जमात खाने आने की मोहब्बत देवे, नेक अमाल की तौफीक देवे। मौला ज़ाहिर बातुन में नूर अता करे, मौला ज़ाहिर बातुन दीदार नसीब करे।